Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn heredity and evolution. We have seen that reproductive process gave rise to new individuals that are similar but subtly different. मतलब हमने आगे इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है जो सिमिलर होता है लेकिन कुछ हद तक अलग होता है। मतलब जो उसके अंदर थोड़े थोड़े कैरेक्टर सेम आते हैं पर उसका चेहरा अलग होता है और सब कुछ अलग होता है, तो वो है हेरिडिटी। We have discussed how some amount of variation is produced even during a sexual reproduction, and number of successful variation and are maximized by the process of sexual reproduction. If we observe a field of sugarcane, we find a very little variation among the individual plant, but in number of animals, including human beings, which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited, the long-term consequences of the accumulation of variation are also the interesting point to be considered. We shall be studying this under evolution. So let us start accumulation of variation during reproduction. So guys, you see here figure 9.1. So guys, आप इसे देख के बता सकते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। तो इसमें यह कह रहा है कि ये जो है वो एक पेरेंट है और उसके ये और ये दोनों बच्चे हुए, तो उसमें से एक का ये वाला डिफरेंट है, एक का ये पार्ट डिफरेंट है। तो ये इस मतलब इसके पैर अलग अलग टाइप के हैं और इसका सर अलग टाइप का है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग अलग टाइप का है। तो वैसे ही अब इसके भी दो डॉटर सेल हुए। इसमें एक का ये डिफरेंट है, एक का ये डिफरेंट है, लेकिन ऊपर वाला जो उसके पेरेंट में था वो तो सेम ही है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो हमारे पेरेंट्स में से मिलते हैं और बाकी के कुछ वेरिएशन से होते हैं। और इसमें देखिए कलर का डिफरेंस है। आप देख रहे हो कि ये डार्क ब्लू कलर का है और ये लाइट ब्लू है, तो इसके अंदर इसकी बॉडी अलग होगी। बाकी तो ये देखो इसका ये ग्रीन कलर ये सेम है। तो ये चीज़ बताता है कि क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, द ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स एट द टॉप विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल सिमिलर इन बॉडी डिज़ाइन बट विथ subtitle differences. Each of them in turn will give rise to two individuals in the next generation. Each of the four individuals in the bottom row will have different from each other, while of while some of these differences will be unique, other will be inherited from their representative parents who were different from each other. तो चलो हम इसे फैमिली के नज़र से देखते हैं। तो ये घर का हेड यानी दादा, ये उनके दो बेटे, ये उन दो बेटों के भी दो बेटे।
इनमें कुछ गुण दादा के भी होंगे और कुछ गुण पापा के भी होंगे और कुछ गुण किसी के भी नहीं होंगे। मतलब हाँ, इसमें वेरिएशन हो जाता है। तो हमें यही चीज़ हमें आगे पढ़नी है। Inheritance from the previous generation provide both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation. Now think about what should happen then when this new generation in its turn reproduces. The second generation will have difference that they inherit from the first generation as well as newly created difference. Heredity. So, what is heredity first of all? The most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are real by inherited. Let us take the closer look of these rules. तो आप ये फिगर 9.2 देखो। इसमें इस बच्चे के कान अलग है और इस बच्चे के कान भी अलग है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि दोनों एक फैमिली से नहीं हो सकते हैं। ए फ्री एंड बी अटैच्ड ईयर लोब्स। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि ये ए में जो है उस बच्चे का ये वाला ईयर लोब कनेक्टेड नहीं है और इसका कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंस हो सकता है। The lowest part of a ear, called the earlobe, is closely attached to the side of a head in some of us and not in others. Free and attached earlobes are two variants found in human population. So now let us take a look on inherited traits. What exactly do we mean similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of a human being, however, it does not look exactly like its parents, and human populations show a great deal of variation. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंस में क्या फ़र्क क्या है? तो आप देख सकते हो कि जो चाइल्ड होता है उसके अंदर बहुत सारे गुण, उसके अंदर टोटली सारे गुण ह्यूमन बीइंग के होते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ अपने पेरेंट्स के होते हैं तो कुछ किसी और के जैसे होते हैं। तो इसका ये बड़ा वेरिएशन है। एक्टिविटी 9.1 ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लास। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स हैविंग अ फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स and calculate the percentage of a student having each. आप क्लास में सभी के कान देखना, उसमें से कितने लोगों का ये फ्री है, ये ईयर लोब्स फ्री एंड है, या कितने लोगों के ऐसे अटैच्ड है, वो लिस्ट करना और उसको कैलकुलेट करके उसे परसेंटेज में लिखना। Find out about the earlobes of the parents of each student in class. उनके बाद उनके पेरेंट्स के भी वो earlobes देखना। Correlate the earlobes type of each student with that of their parents. Based on this evidence, suggest a possible rule for the inherited of earlobes types. मेंडल। अब मेंडल कौन है? तो मेंडल इज़ द फादर ऑफ अ जेनेटिक्स। मेंडल के तीन रूल्स हैं। तो उसमें से पहला रूल है रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both parents and material DNA.
Thus, for each trait, there will be two versions of each child. What will then the trait seen in the child be? Mendel, Seabox, worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of the experiments from more than a century ago. तो ये था मेंडल। तो कुछ हम मेंडल के बारे में भी पढ़ते हैं। मेंडल was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna. Failure in the examination for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quiz. He went back to his monastery and started growing peas. ये जो मेंडल है वो एक पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था वीना यूनिवर्सिटी में वीना गया। और वहाँ पे जब उसने एग्ज़ाम दी तो वो उसमें फ़ेल हो गया। तो वो घर पे आके पीस यानी वटाणे उगाने चालू कर दिए उसने। मैनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पीस एंड देन in other organism earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep account of individual in exhibiting a particular traits in each generation. This helped him to arrive at the law of inheritance. अब आपको बहुत बार ये वर्ड सुनने को आया होगा, ट्रेड्स और कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर और ट्रेट क्या है? तो ट्रेट तो एक अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स है, और कैरेक्टर्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रकार के ट्रेट्स होते हैं। तो मेंडल ने पीस मतलब वटाने के बारे में 7 कैरेक्टर्स और उसके 14 ट्रेड्स दिए थे। तो वो 7 कैरेक्टर्स और उसके 14 ट्रेड्स कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, मैं उस मेंडल के 7 ट्रेड्स और उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले है कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर है उसका टॉलनेस। एक मिनट। उसका पहला कैरेक्टर्स था टॉलनेस। उसके बाद उसका दूसरा टॉलनेस। तो टॉलनेस किसकी? तो टॉलनेस ऑफ अ प्लांट। अब उसका दूसरा कैरेक्टर तो वो था कलर ऑफ सीड। तीसरा कैरेक्टर्स था कलर ऑफ पॉड। पॉड का मतलब वो जो फटाने के ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का और येलो कलर का छिलका आता है ना, उसे पॉड कहते हैं। उसके बाद शेप ऑफ सीड।
उसके बाद में फिफ्थ कैरेक्टर था शेप ऑफ पॉड। सिक्स्थ कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन। और लास्ट कैरेक्टर था फ्लावर का कलर। तो ये मेंडल के 7 कैरेक्टर्स थे। अब ये 7 कैरेक्टर्स थे और अब इसके एक ट्रेड्स थे। तो कौन से ट्रेड थे? तो टॉलनेस ऑफ प्लांट के सबसे पहले दो ट्रेड्स थे। एक तो शॉर्ट और दूसरा था टॉल। उसके बाद सीड के 2 कलर थे, एक तो ग्रीन और एक येलो। फिर पॉड के भी दो शेप थे, एक ग्रीन और एक येलो। अब शेप ऑफ अ सीड, तो राउंड और दूसरा था रिंकल्ड, मतलब ऐसे ऐसे कर चले वाला। बाद में पॉड के शेप भी वो दोनों ही थे, राउंड और रिंकल। बाद में फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की 2 पोजीशन थी, एक टर्मिनल और एक्सियल। टर्मिनल का मतलब होता है डाली के एंड में और एक्सियल का मतलब होता है डाली के स्टार्टिंग में। अब फ्लावर के 2 कलर, एक वाइट और दूसरा पर्पल वायोलेट। तो ये थे उसके 7 ट्रेड्स और उसके 7 कैरेक्टर्स। 7 ट्रेड्स और उसके 14 कैरेक्टर। Mendel used number of contrasting visible characters of a garden tree: round wrinkled seed, tall and short plant, white and violet flower, and so on. He took pea plant with different characteristics, a tall plant and a short plant, produced progeny by crossing them, and calculate the percentage of a tall and short plant. In the first place, there was no half-face characteristics in the first generation or F1 progeny, no medium height plants. तो अब मेंडल ने 2 पी प्लांट को क्रॉस किया, मतलब ये अभी तो आप जो देख रहे हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या? सिर्फ एक ही ट्रेट। तो ये टॉल और ये शॉर्ट। टॉल का हमेशा आएगा कैपिटल टी और शॉर्ट का आएगा स्मॉल टी। और इसको अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो 4 प्रोजेनी होगी, चारों के चारों कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें ये जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट का मतलब क्या?
वो दिखते हैं, हो होते तो है और दिखते भी है। और रेसेसिव, जो स्मॉल टी है वो है रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब क्या, जो होते तो है पर दिखते नहीं। अब मेंडल ने एक बार तो क्रॉस किया, अब वही जो F1 जनरेशन के मतलब ये पेरेंट थे, अब उनके जो तो जनरेशन आई वो कैपिटल टी स्मॉल टी आई। अब उस जनरेशन को ही क्रॉस कर दिया, वो था F2 जनरेशन। तो अब इसके अंदर क्या वेरिएशन निकलता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। मतलब 3 प्लांट टॉल हो गए और एक प्लांट शॉर्ट। और 3 में से एक होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हो गए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होगा होमोजाइगस रेसेसिव। अब होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस रेसेसिव, ये सब क्या होते हैं, तो होमोजाइगस मतलब दोनों के दोनों सेम हो, और हेट्रोजाइगस मतलब दोनों के दोनों अलग हो। तो होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब दोनों के दोनों सेम हो और दोनों के दोनों ये वाले कैपिटल टी हो, तो वो हो गए होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर हो होमोजाइगस रेसेसिव का हो तो दोनों के दोनों स्मॉल टी होगी। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दोनों अलग हो गए। अब इसमें डोमिनेंट ये है और रेसेसिव ये है। अब इसको होमोजाइगस सिर्फ डोमिनेंट ही कहेंगे, रेसेसिव नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर रेसेसिव कहने जाएंगे तो भी वही होगा, तो होमोजाइगस डोमिनेंट बन जाएगा। इसलिए होमोजाइगस रेसेसिव कभी नहीं आता। एक्टिविटी 9.2, in figure 9.3, what experiment we do to confirm that the F2 generation did in fact have a ratio 1 to 1 of capital T capital T, capital T small t and small t trait combination। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो गाइस, अब तक आपने जो देखा था वो क्रॉस, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अब देखेंगे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो अब मैं इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको कैसे करते हैं वो बता। तो देखिए आप कैसे करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 ट्रेड्स के बीच में होता है, जैसे कि राउंड राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल येलो। तो गाइस पहले आप अलग अलग ले लीजिए, जैसे कि राउंड का दोनों कैपिटल आर होगा और ग्रीन का दोनों स्मॉल वाई, रिंकल्ड का दोनों स्मॉल आर होगा और येलो का दोनों कैपिटल वाई। तो अब इसमें से एक लो कैपिटल आर, इसमें से एक लो स्मॉल वाई, इसमें से एक लो स्मॉल आर, इसमें से एक लो कैपिटल वाई।
अब इसको इसके साथ इसको, एक मिनट, स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए पहले से करता हूँ। ऊपर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, बाद में स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो क्या बन जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो अब इसे क्रॉस करते हैं। तो गाइस हमने ये टेबल बना दिया है। अब इस टेबल को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, तो दो कैपिटल आर हो गए, और कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई, दो कैपिटल वाई हो गए। वैसे ही दो कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसे ही हमें ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है, सब कुछ। उसके बाद जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स क्या होता है? जीनोटाइप्स का मतलब होता है जो जीन्स होते हैं उसके अलग अलग फॉर्म, मतलब जीनोटाइप इसका क्या होगा? तो एक होगा कैप जो राउंड हो और येलो हो। तो टोटल राउंड येलो कितने हो गए? तो सो गाइस राउंड और येलो टोटल 9 है। अब देखते हैं रिंकल्ड येलो कितने हैं। तो रिंकल्ड येलो 4 है। अब देखते हैं राउंड ग्रीन कितने हैं। सॉरी गाइस, राउंड जो रिंकल्ड येलो है वो 3 हो गए, और जो राउंड और ग्रीन है वो 1 होगा। और टोटल हमें पता है कि टोटल ये जो होगा वो 16 होगा। क्यों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 बॉक्स है इसलिए 16 होगा। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? 9:3:1:, तो इसका जीनोटाइप होगा, इसको हम अगर रेशियो में लिखने जाएं तो लिखेंगे 9:3:1। मैं आपको पूरे में दिखाता हूँ। 9 रेशियो 3:3:1। सो ये है इसका जीनोटाइप्स। और अगर इसका फिनोटाइप देखेंगे तो वैसे ही होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वाला होगा। तो ये था हमारा जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने किया था वही सेम टेबल यहाँ पे भी दिया है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो इसमें आप देख रहे हो राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो इसका जीनोटाइप 9:3:3:1। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी वो बॉय होगी या गर्ल? तो
ये है मेल गैमेट्स एक्स और वाई, और ये है फीमेल गैमेट एक्स। इसको आप एक्स एक्स भी लिख सकते हो। तो जब मेल स्पर्म एक्स इसके साथ फ्यूज़ होगा तो बनाएगा एक्स एक्स, जो होगा गर्ल। और अगर फीमेल और अगर मेल का वाई इसके साथ फ्यूज़ होगा तो बनेगा एक्स वाई, जो होगा बॉय। तो सिंपल यही था सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं आपको इसे अच्छे से समझाता हूँ। तो फीमेल एक्स एक्स और मेल एक्स वाई, तो क्रॉस होगा तो x के साथ x, x के साथ y, ये x के साथ ये x के साथ ये x, ये y, ये x के साथ ये x, ये y। तो इसके 50% चांसेस हो गए गर्ल और 50% चांसेस हो गए बॉयज़। तो इसमें आप जो देख रहे हो x x वो 2 है और x y पे 2 है। तो इसका मतलब 50% चांसेस फीमेल है और 50% चांसेस मेल है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन कैसे हो सकता है? तो इवोल्यूशन तीन तरीके से हो सकता है। एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा वेरिएशन, और तीसरा जो माइग्रेशन करते हैं वो। इससे ये जो इवोल्यूशन कैसे होता है, तो समझो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे एक फील्ड है, फील्ड के अंदर कुछ रेड बीटल्स है। उसमें से एक ने इवॉल्व करके अपना कलर ग्रीन कर दिया। अब आसपास के क्रो आते हैं तो वो रेड बीटल्स को तो खा जाएंगे क्योंकि वो उन्हें आसानी से दिखते हैं, पर वो ग्रीन बीटल को नहीं खा पाएगा क्योंकि वो क्रॉप के कलर की तरह हो गया होगा, जिसके कारण वो बच गया। और ऐसे ही अलग अलग बन जाएंगे, ऐसे ही अलग अलग सब अपना म्यूटेशन करके ग्रीन कलर बनने का ट्राई करेंगे, जिसके कारण ये क्रो ग्रीन कलर नहीं दिख पाएंगे। अब बाद में कभी ऐसा हो कि ये जो जो फील्ड में जो क्रॉप है वो सूख जाए और इसके कारण उसका कलर येलो हो जाए, तो ये ग्रीन बीटल्स दिखने लगेंगे। क्रो उनको खा लेंगे तो वो फिर से वो अपना म्यूटेशन करके अपना कलर येलो करेंगे। तो जब वो वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन कैसे होता है कि अपने आप को म्यूटेशन करके अपने आप को एडॉप्ट करना, जिसके कारण वो सरवाइव कर सके। इसको कहते हैं वेरिएशन। अब नीचे एक और एग्जांपल दिया है, ये एलिफेंट फुट। ये इसके अंदर कुछ रेड बीटल्स थे, वो उसमें से कुछ ब्लू बन गए वेरिएशन के कारण। अब इस वक्त क्रो ने तो नहीं खाया, लेकिन एक जायंट एलिफेंट आया और चला गया, इसके ऊपर ऐसे पैर रख के चला गया। अब कुछ ब्लू बीटल्स बच गए, अब रेड सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। तो वो कुछ ब्लू बीटल्स अपने आप को ज़्यादा बना देंगे और वो पूरा रेड बीटल्स की जगह वो पूरे के पूरे ब्लू बन जाएंगे। तो ये था जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कुछ नेचर के इंसिडेंट से। इसको नेचर सिलेक्शन भी कहते हैं, मतलब नेचर को सिलेक्ट करना, नेचर के द्वारा सिलेक्ट हुए। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट अचानक से ही हो जाता है और उसमें से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं रेड बीटल्स की तरह, और कुछ बच जाते हैं ब्लू बीटल्स की तरह। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल यहाँ तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ। एक दिन एक माउंटेन था
वहाँ पे एक ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकीज़ रहते थे। वो सारे मंकीज़ फ्रूट खाते थे और यहीं पे रहते थे। एक दिन कुछ यहाँ के फ्रूट्स ख़त्म हो गए, तो वो आगे बढ़कर दूसरी जगह पे गए और वहाँ पे दूसरा ट्री देख के वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे फ्रूट ख़त्म हो गए, तो वो उन्होंने दूसरा ट्री ढूंढा और वहाँ पे गए। वैसे करते करते सब लोग अलग हो गए। एक दिन ये अर्थ टूट गई और अलग अलग कॉन्टिनेंट बना दिए। अब ये इस साइड नहीं जा सकते या ये इस साइड नहीं आ सकते, तो वो वहीं पे रहने लगे, ये यहीं पे रहने लगे और ये यहीं पे रहने लगे। तो इसी तरह से होता है माइग्रेशन। यह माइग्रेशन के कारण अलग अलग पड़ जाते हैं और उसके बाद वो वहीं पे सर्वाइव करने लगते हैं। अब समझो, जो पहले थे वहाँ पे तो माउंटेन्स थे, तो वो माउंटेन से अडेप्टेड हो गए। अब दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे डेजर्ट था, तो वो स्टार्टिंग में तो डेजर्ट से अडेप्ट नहीं हुए होंगे, इसलिए वो धीरे धीरे अपने बॉडी को फिट बना रहे थे, जिसके कारण वो डेजर्ट में रह सके। तीसरे जो गए वो जगह फॉरेस्ट थी, तो फॉरेस्ट में वो बाकी के सब जो वहाँ पे फॉरेस्ट आगे गए, वो लोग फॉरेस्ट से अडेप्ट हो गए। तो वैसे ही एडेप्टेशन हो गई और ये अलग अलग रहने लगे। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन बाय म्यूटेशन, बाद में नेचुरल सिलेक्शन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन बाय माइग्रेशन। Acquired and inherited traits. We discussed the idea of a germ cells of a sexually reproducing population are made in a specialized reproductive tissue. If the weight of the beater is reduced because of starvation, that will not change the DNA of a germ cells. Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of starving beetle. तो इसका मतलब है कि कुछ जो थे उनका वजन जो कम हो गया, तो वो उनका एक ट्रेट नहीं कहलाता, वो इनहेरिटेड कहलाता है। इसलिए वो इनहेरिटेड अलग और एक्वायर्ड ट्रेट मतलब जो इन्हें पहले से ही मिला हुआ है, उसको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन सेट आउट ऑन द यूज, मतलब चार्ल्स डार्विन है वो अपने एक किसी आइलैंड पर घूमने के लिए जा रहे थे। When he was 22 years old, जब वो 22 साल के थे तब the 5-year voyage took him to South America and the island of its coast. अब 5 साल के वो जो जहाँ पे रहे उसमें से एक दिन वो साउथ अमेरिका के किसी आइलैंड पर पहुँच गए। The studies that he conducted during his voyage were to change forever the way we look at the variety of life on earth. अब उन्होंने जो देखा उससे सब कुछ बहुत अलग अलग था, मतलब कुछ लोग अलग दिखते, कुछ अलग था, कुछ अलग था, ऐसा ही। Interestingly, after he got back to England, he never left its shores again. He stayed at home and conducted various experiments that led him formulate his hypothesis that evaluate took place due to natural selection. He did not know the mechanism whereby variation arose in the species. He would have been enlightened by the Mendel's experiment, but these two gentlemen did not know of each other or their work. We often associate Darwin solely with a theory of evolution, but
He was an accomplished naturalist. When and one of the studies he conducted was to the role of earthworms in soil fertility. अब चार्ल्स डार्विन भी वो ग्रिगोर जॉन मंडल की तरह बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी बहुत सारी खोज की थी। उसमें से उनकी एक खोज थी सॉइल की फर्टिलिटी अर्थवर्म बढ़ाते हैं वो वाली। तो वैसे ही इन्होंने थियरी दी और बहुत सारी थियरीज आई, जैसे कि बिग बैंग थियरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वैसे बहुत सारी थियरी। तो हम आप भी पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन लाइफ, origin of life on earth. Darwin's theory of evolution tells us how life evolved from simple to more complex form, and Mendel's experiment give us the mechanism of inheritance of traits from one generation to another, but neither tell us anything about how life began on the earth in the first place. ये ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरी मैं आपको कहता हूँ। एक बार की बात है जब एक साइंटिस्ट ने एक चावल की बोरी में थोड़ा पसीने वाला शर्ट डाल दिया था। तो गेहूं के बोरे में पसीने वाला शर्ट डाल दिया था। उसके कारण कुछ रेड्स आ गए थे वहाँ पे, और वो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ये जो स्वेट के कारण ये रेड्स ने बर्थ ले लिया है। तो ऐसे ही उन्होंने सबको बताया ये। तो सबको किसी को भी उसके बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करके सबके सामने दिखाया। उसमें उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर थोड़ी सॉइल मिक्स कर दी और उसके अंदर थोड़ा डर्ट पार्टिकल मिक्स कर दिया और सबके सामने रख दिया। अब 2-3 दिन के बाद वहाँ से फ्रॉग निकलने लगे। तो अब उन्होंने कहा कि देखो ये ऐसे ही हमारी ओरिजिन हुई है। तो ये थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरी। J.B.S. Haldane, a British scientist who became a citizen of India later, suggested in 1929 that life must have developed from a simple organic molecule which were present on the earth soon after it was formed. He speculated that the conditions on the earth at a time which were far from the condition we see today could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life. The first primitive organism would arise from the further chemical synthetic. How did this organic molecule arise? An answer was suggested by the experiment conducted by Stalin L. Miller and Harold C. Urey. In 1953, they assembled an atmosphere similar to that thought to exist in early Earth. उन्होंने एक एटमॉस्फेयर जैसा एक चीज़ बनाई जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स थे, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था और उसको पानी के ऊपर रख दिया था। दिस वॉज मेंटेन एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसको 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखा था। एंड स्पार्क्स वर पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इस सभी गैसेस के अंदर स्पार्क्स प्रोड्यूस कर रहे थे टू सिमुलेट लाइटनिंग, इससे लाइटनिंग प्रोड्यूस हो। एट द एंड ऑफ अ वीक 50% ऑफ अ कार्बन फ्रॉम मीथेन had been converted to simple compound of carbon including amino acid which makes up protein molecules, so can life arise fresh on earth even now. अब उन्होंने क्या किया था, जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पानी लिया था और वो जो केमिकल्स थे उसके अंदर स्पार्क्स प्रोड्यूस किए, और उसके बाद एक वीक के बाद उन्होंने जब चेक किया तो 15% जो कार्बन था जो मीथेन में से
वो सिंपल कंपाउंड बन गया, सिंपल कार्बन कंपाउंड बन गया और उसके साथ एमाइनो एसिड भी बन गया और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन गया। सो और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि लाइफ ऐसे ही बनती है। स्पीशिएशन, what we have s- what we have seen so far is microevolution. That means that changes are small, even through even though they are significant. Also, they simply change the common characteristics of a particular species. But this does not properly explain as to how new species come into existence. That can be said to be have happened only if this group of beetles we are thinking about splits into two populations that cannot reproduce with each other. अब इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या? होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसका मतलब सेम स्ट्रक्चर। इसके अंदर इस फोटो के अंदर आप देख रहे हो जो बर्ड का हाथ होता है और ह्यूमन का हाथ होता है, उन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम सिमिलर ही है। और वैसे ही आप देखो फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, ह्यूमन, ये सब के आर्म बहुत सेम, इनका स्ट्रक्चर बहुत सेम होता है, लेकिन आप देखोगे तो इनका फंक्शन बहुत अलग होता है। फ्रॉग का जंप करने के लिए, लिजर्ड का क्लाइंब करने के लिए, बर्ड का फ्लाई करने के लिए और ह्यूमन दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसलिए इस होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। वैसे ही एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या? एना एनालो एना मीन्स डिफरेंट एंड लॉगस मीन्स स्ट्रक्चर, मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर तो आप इसका बैट का विंग्स देखो और ये बर्ड का विंग देखो, दोनों का स्ट्रक्चर तो बहुत अलग है। लेकिन ये जो दोनों का काम क्या है? उड़ने का काम। इसलिए एनालॉगस ऑर्गन आर द ऑर्गन्स विच which are which have different structure but same function. Example, wing of a bat and the wing of a bird. अब हम देखेंगे फॉसिल। तो फॉसिल्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्री ट्रक, इनवर्टिब्रेट जो एमोइनाइट भी कहते हैं इसे, इनवर्टिब्रेट जिसको ट्राइलोबाइट भी कहते हैं। फिर ये फिश जो नाइटिया है, नाइटिया। और ये फॉसिल्स डायनासोर का स्कल से, डायनासोर का स्कल मतलब जो राजासोरस है उसका स्कल। तो ये फॉसिल किसके बने होते हैं? तो ये फॉसिल्स कार्बन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कार्बन। अब आप सोच रहे हो कि इतना सारा कार्बन, हमारे दुनिया में इतना सारा कार्बन होता है तो वो सब क्या हो, उसका यूज़ क्या होता है? तो वो कार्बन से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। जैसे कि आप जो भी पॉलीथीन बैग यूज़ करते हो, जो ये जो शेल्स होते हैं उसमें, बाद में आपके नील्स के अंदर कुछ कुछ कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपकी हड्डियों के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप जहाँ पे देखोगे वहीं पे कार्बन का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके बारे में आप डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं, हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म अ लेयर बाय लेयर। अब ये फॉसिल्स लेयर बाय लेयर होते हैं, वो हमें कैसे पता चलता है? लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो। सम इनवर्टिब्रेट्स ऑन द सी बेड टाई। ये सी था, यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो मर गए। अब उनके ऊपर सैंड आ गई, सैंड स्टोन्स आ गए और वो प्रेशर के कारण वो दब गए। अब वहाँ पे पानी तो है, लेकिन पानी के अंदर वो सारे प्लांट्स डीप अंडर है। अब
वहाँ पे एक डायनासोर की एज थी, तो डायनासोर जब मर गए तो उनका स्कल भी इसी तरह ज़मीन में गड़ गया। उसी तरह से ये हॉर्स है, हॉर्स का भी इसके ऊपर वाले लेयर में आ जाएगा। वैसे ही अब जब भी अब खड्डा खोदो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना पुराना है? तो ये सब हम इसमें ये सब पढ़ेंगे। Millions of years later, a dinosaur living in the area die and their bodies too are buried in mud. This mud is also comprised into rocks above the rock containing the earlier invertebrate fossils. Again, again millions of years later, the body of horse-like a creature dying in the area are much later by erode or water flow wear away some of the rocks and expose the horse-like fossils. As we dig deeper, we find older and older fossils. तो हम जितना भी गहरा खोदते हैं, इतना खोदा तो हमको हॉर्स की फॉसिल मिली। आपको जब पता करना हो कि ये हॉर्स की फॉसिल कितने ईयर्स पुरानी है, तो वो उसके अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है उससे आप चेक कर सकते हो कि ये हॉर्स कितना पुराना है। और उसके भी अंदर जितना खड्डा करोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये हॉर्स से पहले पहले ही ये जो अंदर गया है, तो वो कितने ईयर्स पहले डटा था, वो सब आपको कार्बन के मॉलिक्यूल से पता चल जाएगा। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब जो स्टेजेस, ये जो प्लेटफॉर्म, प्लेन एरिया और वो सब इवॉल्व हो गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इवोल्यूशन का। पहले ये जो डायनासोर थे उनके पास फीदर्स थे, लेकिन फीदर्स वो उससे उड़ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो फीदर्स उनको वार्म रखते थे ठंडी के सीज़न में, और उनके एग के ऊपर जब वो फीदर्स रखते थे तो एग को गर्माहट पहुंचती थी। पर अभी जो इवॉल्व हो गए हैं बर्ड, उसके पास भी फीदर्स तो है, लेकिन वो फीदर्स वार्म रखने के लिए काम नहीं आते, वो फीदर्स अब उड़ने के काम आ गए हैं। तो ये था इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। मतलब जैसे जैसे स्टेजेस आते गए वैसे वैसे वो सब कुछ इवॉल्व हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपको शायद से नहीं पता होगा। पहले जो स्नेक थे उनके भी छोटे छोटे पैर थे। अब वो इवॉल्व होके वो क्रॉलिंग करता रहता है। वो इवॉल्व हो गया है जिसके कारण उसके जो पैर थे वो सब चले गए। ये था इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब आप इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज के बारे में मैं आपको कहता हूँ। हमको जो भी खाना हो, जैसे अभी आप खाते हो कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, रेड कैबेज, काले कोलराबी, वो सब कैसे बनता है? जब हम ये जो वाइल्ड कैबेज का प्लांट उगाते हैं उसमें हमको स्वेलोड पार्ट चाहिए, ये वाला स्वेलोड पार्ट चाहिए, तो हम उसको उस तरह के केमिकल डाल के उसको स्वेलो कर देते हैं और कोलराबी बना देते हैं। और हम अगर वो शॉर्ट लीफ वाले चाहिए तो कॉलीफ्लावर बन जाता है, एरेस्टेड लीफ तो ब्रोकोली बन जाता है, ओनली फ्लावर्स तो कैबेज बन जाता है, बिगर लीफ तो केले बन जाता है। और ये जो रेड कैबेज है वो इवोल्यूशन हमने बनाया है। इवोल्यूशन के कारण हमने ये जो कैबेज था उसके अंदर डीएनए का चेंजेस करके इसको रेड कैबेज बना दिया है। सो ये था इवोल्यूशन ऑफ वाइल्ड कैबेज। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर साइलोजेनी। It has been discussed how change in the DNA during cell division would lead to change in the protein that are made from the new DNA. Another point that has been made is that these changes would accumulate from one generation to the next. Could
Could this be used to trace the change in DNA backward in time and find out where each change diverges from the other? Molecular psychology does existed in exactly this. This approach is based on the idea that organisms which are more distantly related will accumulate a greater number of a difference in their DNA. Such studies trace the evolution relationship, and it has been highly gratified to find the relations among different organisms. So the molecular phylogeny match the classification scheme that we learn in class 9th. Evolution should not be equated with the progress. So do you agree that evolution should not be equated with progress? In an exercise of tracing the family trees of a species, we need to remember certain things. Firstly, there are multiple branches possible at each and every stage of this process. So it is not as if one species is eliminated to give rise to new one. A new species has emerged, but that does not necessarily mean, like the beetle example. We have been thinking about that the old species will disappear. It will all depend on the environment. Also, it is not as if the newly generated species are in any way better. Human evolution. तो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है? मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुए वो चिंपांजी से हुआ है. सो गाइस, मैंने जो स्टेटमेंट बोली वो क्या करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी? सो गाइस, ये इनकरेक्ट थी. ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो चिंपांजी से नहीं हुआ है. ह्यूमन का इवोल्यूशन चिंपांजी से नहीं हुआ है, लेकिन ह्यूमन और चिंपांजी दोनों के एंसेस्टर सेम थे. इसलिए कुछ कुछ गुण ह्यूमन और चिंपांजी के सेम होते हैं. सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और हाँ गाइस, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है. सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़. गाइस, ये है NCERT बुक्स एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ. ये NCERT बुक्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा. मैं आपको दिखाता हूँ. सो आप देखो, यहाँ पे NCERT न्यू बुक्स, NCERT ओल्ड बुक्स, NCERT सॉल्यूशंस, NCERT नोट्स, NCERT एग्जाम्पलर बुक्स, NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वीडियोस, बाद में CBSE के सैम्पल पेपर, CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, CBSE सिलेबस और JEE नीट की सारी तैयारी आप इससे कर सकते हो. और इसके साथ साथ आप IMO, NSO कोई भी आपके स्कूल के अंदर जो एग्ज़ाम होती है इसकी भी बुक आप इसके अंदर से देख सकते हो.